is a special process. It is used for intricate shapes, complicated shapes that can't be manufactured using other processes. So what is important is here small size to large size. The range of the sizes of casting that can be manufactured by investment casting is a big range. Intricate pattern or complicated pattern which can be readily made by wax. So that's wax is used in investment casting process. What we do is one pattern of required shape is made. You can see here a stem of pattern is shown here. A stem of various pattern. This is one pattern. So that pattern is made, and this is made to stick to this central portion. Hmm? Such that many patterns are made here, and they are stick to this rod. Okay. Now this entire rod is fitted. Sorry, the rod dipped into ceramic slurry. Now, due to that, what happens? Ceramic is coat. Ceramic coating is done over wax pattern. Okay, and now what we do is we heat ceramic pattern into the furnace. So what happens is wax get melted. So molten wax comes out. Now what remains is only ceramic slurry, okay, of that particular shape of pattern. And now we invest. Means what we do is now we pour the molten metal into that ceramics make these castings. Now, after that, due to jolting, short blasting, vibrators, you can remove this ceramic slurry later on. And what inside of the particular shape. अभी आप बोलेंगे ये सब ऐसा this is a big stem and these are various roots of that. So then it is cut here and then finished. These portions are cut using and so and then individual castings are finished. So this process is explained here by step. Okay, so you can just go through these steps in investment casting. So these steps are given. Whatever I have explained just now to you, that is given here. Okay, produce a master pattern using wax, then create a mold of this wax patterns. Then this wax pattern, that big stem I was telling you, that big small that pillar shape, to that it is connected. Apply investment material. What investment material? Ceramic slurry. Okay. Then the next process is dewaxing that particular ceramic slurry. So the required shape is we get the required shape, and then after that after burning that what happens is that exact every portion of the wax is melted, so only ceramic slurry remains, or sorry, ceramic pattern remains. So then in that what happens, we do the pouring, and then no, you do short blasting, vibrator, water jet, water jet is applied. So that is done, and even after that, you do grinding. So you get perfect finish of what you know you wanted. Now that investment casting, the characteristic of investment casting, one I told you, very complicated, intricate shapes are means obtained. At the same time, accuracy is very high. So this is a very popular process, investment casting. Again, here the process is shown step by step. See this wax pattern, ceramic slurry, dipped in ceramic slurry, ceramics pattern. Since then that ceramic opening is there, in that you put this one, what we call molten metal, and then that dewax, that vibration, etc., and you get a metal pattern. And then after cutting down, you get the your
a bunch of finished pattern. So this shapes again. This process is shown here. Whatever you, why I have taken is various versions from net. It is because I liked it the way they are presenting, and so that students can understand. Okay, when students understand it 100%, my all efforts are fulfilled. Okay, so these are some of the photos we have taken. See, this is that ceramic slurry. You can see inside. When the wax pattern is molten, that melted out, that inside cavity that is filled by molten metal, and you get फिनिश्ड कास्टिंग. ये देखो सिरेमिक स्लरी बाहर है और अंदर ये मोल्टन मेटल जाने के बाद ये वही शेप आया है. अभी बाद में वाइब्रेशन ये करने के बाद सिरेमिक स्लरी निकल जाएगा तो अंदर वो मोल्टन मेटल रह जाएगा. तो ये देखो, दिस इज द रेंज ऑफ द पार्ट्स. ये parts produced by investment casting. There is one film which now I don't have more time to show you now because we have to finish our syllabus. That's why in case time permits, I can show you later on. Some films are there. A small tiny objects to a big elephant. That is the range of your investment casting. Aircraft components, space components, these are manufactured using this. You can see here the complicated shapes which are difficult to manufacture by other process that can be done by investment casting. See these complicated shapes. Okay, see here. So for that investment casting is suitable because the logic is to scrape the wax is easier because it is softer. And that's why to scrape it is very easy to the required shape. So pattern maker find it easy rather than wood or metal pattern. Okay, so this is about that investment casting. I would like to show you one animation of investment casting. You can see this is the animation started. The wax pattern is produced by injecting the wax into the metal die. तो पहले हम लोग एक wax pattern बनाएंगे. वैक्स पैटर्न बनाने के बाद ये वैक्स पैटर्न बन के तैयार हो गया. ठीक है, ऐसे और हम लोग बनाएंगे क्योंकि एक साथ हमको बहुत से कास्टिंग्स बनाने. सो दिस इज दैट स्टेम. ओके, सेंट्रल वैक्स बार और स्टेम वी कॉल, उसको हमने अलग अलग ऐसा उसको अटैच किया पैटर्न. अभी इसको सिरेमिक स्लरी में डुबाया. सिरेमिक स्लरी में डुबाने के बाद वो सिरेमिक स्लरी उसमें आके ऊपर के एरिया में वो कोटिंग उसका तैयार हो जाएगा. और आप बोलेंगे वो बाद में जो मेल्टन मेटल डालते हैं उसमें सिरेमिक स्लरी मेल्ट नहीं होता क्या? सिरेमिक का मेल्टिंग टेम्परेचर ज्यादा होने का हम लोग फायदा ले सकते हैं. रिफ्रैक्टरी स्लरी वी कैन आल्सो कॉल इट. अभी ये उन्होंने ये किया, गर्म पोर्शन में वैक्स पूरा मेल्ट किया. वैक्स हीटेड बात में हीटेड इसमें फर्नेस में डालने के बाद तो वो इसमें हम लोग क्या होता है कि वैक्स निकल जाएगा, बट सिरेमिक स्लरी रिमेन्स सेम. अभी ये जो कैविटी है जो वैक्स वाली थी वो हमको भरनी है, तो वैक्स का जो स्टार्ट में शेप था वो अभी वो मेटल का मिल जाएगा. वही दिखा रही है. ये देखो, अभी वो भर दिया, वो पूरा शेप भर जाएगा. बाहर का सिरेमिक स्लरी उसको बराबर कंट्रोल करेगा जो शेप चाहिए वो सिरेमिक जो है कोटिंग बाहर का. और अभी सिरेमिक स्लरी निकाल देंगे हम लोग बाहर की, ऐसा उसको वाइब्रेट करके. शॉर्ट ब्लास्टिंग, टम्बलिंग ऐसे रहते हैं ना वाइब्रेटर्स वगैरह पर. आपने कभी फाउंड्री विजिट की तो आपको वो देखने को मिलेगा. अभी इसको हम लोग अलग अलग टुकड़े में कट करेंगे पार्ट्स को. और उसको फिनिशिंग करेंगे, ग्राइंडिंग. समझा बच्चों? हेलो बच्चों, जस्ट गिव मी फीडबैक. यस सर. गुड. तो ये रहा इन्वेस्टमेंट कास्टिंग. ऐसा ही और एक स्पेशल कास्टिंग है सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग. जैसे नाम ही सेंट्रीफ्यूगल है, इसका मतलब ये रोटरी है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज यूज्ड फॉर दैट. व्हाट इज सेंट्रीफ्यूगल प्रोसेस इज डूइंग? It is going at the periphery and rotary, so the process starts. So here you can see one rotary drum is there. You can see in this side view rotary drum is there, and the two rollers you can see here at the bottom.
वो उसको हम लोग मोटर से मोशन दे देंगे, वो रोलर घूमेगा तो उसके वो ऊपर का शेल भी घूमना चालू हो जाएगा। अभी ये शेल में दोनों साइड में ऐसा ओपनिंग है, ओके। तो एक साइड के ओपनिंग में यहाँ पे एक पोरिंग बेसिन है, और ये पूरा ये प्लेटफॉर्म जो है ना, ये आगे पीछे करने के लिए, मतलब वो पोर करते टाइम ये ऐसा ये प्लेटफॉर्म से या ऐसा आगे जाएगा, ये पोर्शन पोरिंग बेसिन, इसको व्हील से तो ये आगे जाएगा और हम लोग मोल्टन मेटल लैडल से लाके इस पे पोर करेगा, और ये वो टाइम हाई आरपीएम में घूमता रहेगा। ऐसे ही वो पोरिंग मेटल यहाँ पे जाएगा, ड्यू टू हाई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इट गोज अप टू द पेरिफेरी ऑफ द ड्रम। अभी आप बोलेंगे सर ये कितना डालने का हम लोग, ये हमारा मोल्टन मेटल कितना डालने का, तो मोल्टन मेटल उतना ही डालना पड़ेगा आपको जितना आपके फाइनल शेप का वॉल्यूम हो। फॉर एग्जांपल आपका जो आउटसाइड डायमीटर इनटू लेंथ पाई बाय 4 इनटू डी स्क्वायर माइनस पाई बाय 4 इनटू डी स्क्वायर, कौन सा डी स्क्वायर, बिग डी that is the outer one and small one that is decided by thickness. So big D minus 2 times the thickness will give you inside diameter. So pi by 4 capital D square minus pi by 4 small d square, that is that inner diameter of the shell we want. ये रहा उनका area, और into the length that will be the volume. तो ये वॉल्यूम कैलकुलेट करके उतना वॉल्यूम ही हम लोग उसमें पोर करेंगे। थोड़ा सा ज्यादा हम लोग कर सकते हैं अगर आपको करना है कि बाद में कुछ फिनिशिंग के लिए करना है तो, लेकिन कम नहीं पड़ना चाहिए। तो क्या होगा कि आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से पूरा जो मोल्टन मेटल है वो पेरीफेरी में चला जाएगा। इसमें क्या होगा, वो ऑटोमेटिकली फोर्सफुली उसको इसमें फेंकेगा, और वो मतलब इनर सरकमफेरेंस पे फेंकेगा ड्रम के, और वो ऐसा घूमता रहने के कारण इवन कास्टिंग आपको मिलेगा, मतलब ग्रेन डिस्ट्रीब्यूशन इतना परफेक्ट हो जाएगा, साउंड कास्टिंग यू विल गेट। हर जगह आपका ये जो है मतलब उसका स्ट्रेंथ और ग्रेन ये ग्रेन स्ट्रक्चर एकदम सेम आएगा आपको, क्योंकि वो रोटरी है ना, तो रोटरी है तो हर एक जगह वो सेम जस्टिस मिलेगा उसको, हर जगह सेम उसका क्रॉस से उसका स्ट्रेंथ आएगा, उसका ग्रेन स्ट्रक्चर आएगा, तो यू विल गेट द साउंड कास्टिंग। ये पर्टिकुलर प्रोसेस जो है ना, ये सर्कुलर पाइप्स के लिए बहुत फेमस है। ये हॉरिजॉन्टल भी है और वर्टिकल भी है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस वाला बहुत पॉपुलर है और बड़े पाइप्स के लिए यूज होता है। स्मॉल साइज के जो कंपोनेंट है उसके लिए वर्टिकल भी अवेलेबल है, which is more suitable to handle. तो वो that is also there, and you can see here that vertical one, vertical centrifugal casting and horizontal. but बड़े shapes के लिए आपको, बड़े pipes के लिए आपको horizontal ये casting बहुत पॉपुलर है, मतलब horizontal centrifugal casting process बहुत पॉपुलर है। You can see various versions are shown. अभी ये देखो, ये भी एक ऐसा ये कंपोनेंट बनाया गया है। ये देखो फिनिश भी देखो उसका कितना अच्छा है, मतलब ये एक देखो बड़ा पाइप ये भी बनाया गया है ऐसा, ऐसा। उसको आपको आप बोलेंगे एग्जैक्टली सर्कुलर वही बनाया जा सकता है कि ऐसा बीच में थोड़ा क्रॉस सेक्शन चेंज वो हो सकता है। वो जो ड्रम का जो क्रॉस सेक्शन है ना, वो जैसा होगा वैसा ही तुम्हारा पाइप भी बनेगा। यू कैन सी हियर also, आपको जो फिगर अच्छा लगे आप ले लो। वेरियस वर्जन्स फ्रॉम इंटर लगे हुआ। एक फिगर में कुछ क्लियर नहीं हुआ तो दूसरी फिगर में क्लियर होता है कि रोलर अरेंजमेंट कैसा रहता है। इसमें ये दिखाया, देखो ये क्रॉस सेक्शन कैसा होगा, साइड व्यू दिखाया, मतलब देयर आर सो मेनी गुड फिगर्स। किसी को लगता है ये कॉम्प्लिकेटेड फिगर है, मैं सादा निकालूंगा क्रॉस सेक्शन, ओके भाई आप सादा निकालो, तो ये फिगर आपको चीज योर्स है। देखो ये भी एक सिंपल वन, सबसे सिंपल, जो ड्राइंग में वीक है वो ये फिगर भी निकाल सकते हैं। ये एक्चुअल पार्ट देखो कितना बड़ा साइज का है। दिस इज मैन्युफैक्चर्ड बाय हॉरिजॉन्टल दैट सेंट्रीफ्यूगल कास्टेड। ओके, सी द फिनिश। सो ये सब ऐसा बड़े पाइप्स के लिए ये यूज होता है सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग। ये देखो बाद में उसको बाहर निकालते हैं। ये सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग हो जाने के बाद है ना, ये मशीन है, ये जो राइट साइड में ना मेरे वो मशीन है, और उसको बाद में इधर ऐसे कि एक्सट्रैक्टर एक बड़ा ऐसा ये ग्रिपर रहता है, वो उसको ऐसा उसको पीछे खींच के लाया है,
ये देखो ये लाल, बाद में ये कूल होना चालू हो गया अभी ये बाहर से कूल होना चालू हो जाएगा ना, क्योंकि क्या सरफेस पे पहले कूल होता है, ये तो लाल है, अंदर अभी भी वो येलो हॉट है, मतलब इसका टेम्परेचर ज्यादा है और वो बाहर से कूल होना चालू हो गया और वो बाद में सफिशिएंटली कूल हो जाएगा। तो ये रहा तुम्हारा सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग प्रोसेस। नाउ वी विल गो टू कंटिन्यूअस कास्टिंग प्रोसेस। अभी ये कंटिन्यूअस कास्टिंग प्रोसेस है, ये जनरली उसको ये में नहीं होता, ये होता है रोलिंग मिल में वगैरह होता है। मतलब ये जो अपना जैसे आपका फर्नेस एक जगह रहेगा, उसमें वो मोल्टन मेटल चलता रहेगा और एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन के उसमें वो मोल्टन मेटल डाला जाएगा और वही क्रॉस सेक्शन आपको मिलेगा और वो बाहर एक सेट ऑफ रोलर है उसको बाहर लाने के लिए, वो सेट ऑफ रोलर्स पे वो आगे 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 आते जाएगा और उसको जो रिक्वायर्ड हमको साइज है उसमें वो कट करने के लिए उधर हमारे पास एक ये है, मतलब गैस कटिंग पोर्शन है, तो उससे हम लोग उसको रिक्वायर्ड पोर्शन में कट कर सकते हैं। अभी ये प्रोसेस क्या है मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। ये तुम्हारा अभी इसमें ना ये प्रोसेस की 2D फिगर दिखाई है, दिस इज नोन एज टन डिश। इसमें क्या रहता है कि तुम्हारा मोल्टन मेटल इसमें आएगा, ये रोटरी रहेगा, ये इसमें एक टन डिश रहेगा, दूसरे साइड में एक रहेगा, तो ये एक बार ये जब तक यहाँ पे ओपनिंग ओपन हो रहा है ये मोल्टन मेटल, तब तक वो दूसरा है वो लैडल से भरा जाएगा। तो ये देखो यहाँ पे दिखा है एक एक वन इज दैट लैडल, देन दैट टन, सेकंड इज टन डिश, दिस इज दैट टन डिश। ओके, तो ये लैडल और ये लैडल जो भी भरा है ना उसमें वो ये टन डिश पोर्शन बोलते हैं। तो इसमें से क्या होता है, अभी यहाँ पे भी एक चालू है और यहाँ पे भी एक चालू है, दो जगह चालू है। तो उसमें से क्या होता है, कंटिन्यूअसली तुम्हारा जो मोल्टन मेटल है ना ये यहाँ पे गिरता रहता है। जो शेप आपको क्रॉस सेक्शन का चाहिए ये 3 नंबर है, ये 3 नंबर क्या है, मोल्ड है। तो ये अभी कंटिन्यूअस प्रोसेस चालू है मोल्टन मेटल पोर होने की। ये जो लैडल्स है, ये लैडल मोल्टन मेटल लाके इसमें डालते हैं। जब तक ये यहाँ पे खाली हो रहा है तब तक ये लैडल भर के लाते हैं ये फर्नेस से। ये जब तक खाली हो रहा है तब तक ये जाके भरते रहेगा। ऐसा कंटिन्यूअस आपका ये जो डिश है ना ये पूरा आपका भरा रहेगा हमेशा, और यहाँ से कंटिन्यूअस फ्लो जो है ये ऐसा चलता रहेगा। और ये क्रॉस सेक्शन में जा रहा है, ये देखो आपको क्रॉस सेक्शन कौन सा दिखा है यहाँ पे, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन दिखा है, और यही रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन का पोर्शन बाहर आता है। और वो बाहर आने के बाद ऐसा सेट ऑफ रोलर्स है, उसमें से इसको वर्टिकल से ऐसा सर्कुलर पोर्शन से आर्क देके ऐसा हॉरिजॉन्टली लाते हैं। ऐसा देखो ये पोर्शन है ना, यहाँ से इसको डालते 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 यहाँ से ऐसा ये लेके आते हैं, हॉरिजॉन्टल लेके आते हैं। और ये जो क्रॉस ये थिकनेस है ना एकदम परफेक्टली मेंटेन करता है ये रोलर और उसके बेरिंग्स वगैरह, ये इसका डिजाइन एकदम स्पेशल है। टाटा टिमकेन नाम की कंपनी है ना, वो टिमकेन बेरिंग है ना, ये इसके बेरिंग बनाते हैं। ये वो पूरा तुम्हारा कंटिन्यूअस कास्टिंग वाले ये जो रोलर है ना उसके ये बेरिंग बनाते हैं। तो ये ऐसा बाहर आएगा और ऐसा कंटिन्यूअस सेट ऑफ रोलर पे ऐसा घूमता रहेगा रोलिंग मिल में, और जो शेप आपको चाहिए उसमें आप कट कर सकते हैं, मतलब जितने लेंथ का चाहिए उसमें आप कट कर सकते हैं। तो ये देखो ये सेट ऑफ रोलर से ऐसा घूमता आएगा। तो आपको थोड़ा सा ये दिखा था मैं, और बाद में देखो ये पर्टिकुलर लेंथ का चाहिए ना, तो वही लेंथ पे हम लोग कट करते जाएंगे इसमें तुम्हारे इससे क्या कहते हैं गैस कटिंग से। अगर आपको वो जो मोल्टन मेटल जो बहता आ रहा है वो स्टील का है तो आप ऑक्सीजन कटिंग यूज कर सकते हैं। अगर आपका वो नॉन फेरस है तो यू कैन यूज प्लाज्मा कटिंग फॉर कटिंग दिस। नॉन फेरस का ऑक्सीजन कटिंग नहीं चलेता, क्योंकि उसका जो ऑक्साइड्स बनता है नॉन फेरस का वो बहुत हार्ड एंड ब्रिटल रहता है, वो पूरा डैमेज कर देगा आपका कटिंग। दैट्स व्हाई दैट इज अ प्रोविजन। ये पूरा प्लांट कैसा रहता है देखो, along with EOT crane. EOT crane means electrical operated this crane, and that is 20 tons 50 tons ऐसा बड़ा बड़ा उसका कैपेसिटी रहता है। ओवरहैंग क्रेन इट इज, ओवरहेड क्रेन। तो ये देखो इधर एक ये जो मैं ये देखा ना ये पहला वाला लैडल ये भर के आएगा, बाद में वो दूसरा वाला आएगा, और ये ऐसा ये 180 डिग्री पे ऐसा घूमता रहेगा। तो ये मतलब जो ब्लैंक वाला है वो इधर आएगा तो अपना ये इमीडिएटली नीचे आके इसको लेके जाएगा ये।
बाद में ऐसा साइड में जाएगा और वो फर्नेस की तरफ लेके जाएगा। मीनवाइल ये यहाँ पे खाली होगा। ऐसा कंटिन्यूअस प्रोसेस अपना चलता रहेगा। और यहाँ से वो जो नीचे आ रहा है ना यहाँ पे, ये देखो ये ऐसा पूरा सेट ऑफ रोलर पे ऐसा आगे घूमते घूमते जाएगा और वो जिस पोर्शन में आपको कट करना है वो आपको वो वहां पे आप कट कर सकते हैं। मतलब इतना पोर्शन आगे आया कट किया, बाद में रिमेनिंग आया उतना कट किया। मतलब आपका वो जो जो पोर्शन आपको कट करना है वो उतना हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं लेंथ वो इसकी गैस कटिंग के। तो दिस इज अ कंटिन्यूअस कास्टिंग। तो कंटिन्यूअस कास्टिंग बार्स कैसा हमको मिला है वो देखो, ये मतलब हाई रेट ऑफ प्रोडक्शन है बिकॉज इट इज कंटिन्यूअस इन एक्शन। और एक ये दिखा है देखो, ये बहुत अच्छा फिगर है। दिस इज very very nice figure. In case this question be asked in the exam, you can draw this figure. ये देखो ये गैस टॉर्च कट ऑफ पॉइंट ये दिखाया उन्होंने। तो ऐसा स्लैब बनेगा। मतलब ये पॉइंट से आगे कितना गया, इतना गया, वो पॉइंट पे बाद में उसको कट करते हैं ऐसा। तो ये सब ऐसा है। यहाँ पे भी दिखाया है देखो ये एकदम क्लियरली दिखाया है कैसा स्क्वायर पोर्शन है तो वो स्क्वायर बाहर आता है। तो कहने का मतलब आपको है कि आपको जो शेप चाहिए वो शेप आप इसमें दे सकते हैं। ओके, सो हैव यू अंडरस्टूड दिस बच्चों? बच्चों ये देखो ये भी एक, हाँ ये देखो ये पैरेलली ये भी चालू है, उधर एक चालू इधर एक, ऐसा ये इधर का बंद है अभी तो ये चालू है। बाद में मतलब ये इसके ऊपर है ये ठंडी से एक बार ये इसको 180 डिग्री पे घुमाएगा। जो ब्लैंक वाला है वो इधर आएगा, भरा हुआ है वो सामने रहेगा। ये रोटेटेबल अरेंजमेंट एंड ठंडिश एंड देन दिस ऑल दिस। तो ये चीज है ना, हमको हम लोग जब पढ़ाई कर रहे थे तो हमको इतना समझता नहीं था। मतलब बाद में हमें इंडस्ट्री देखने के बाद मैंने मुकुंदायन में ये सब देखा है। तो ये सब मुकुंदायन कड़वा का अभी चालू है क्या बंद है मुझे मालूम नहीं, लेकिन वो टाइम बहुत फॉर्म में था ये 92 93 में जब मैं नया प्रोफेसर था। मैं पहले 4 साल इंडस्ट्री में काम करके आया था, लेकिन ये रोलिंग मिल वगैरह नहीं देखा था। वो उधर मुझे देखने को मिल गया, अपने स्टूडेंट्स के प्रोजेक्ट्स थे वहां पे। एक कोई मुझे याद भी है वहाँ डॉक्टर सावंत नाम के थे डिजाइनर, वो सब वो क्रॉस सेक्शन वगैरह वो उसके तज्ञ थे वो टाइम। तो एनीवे पुरानी बातें हैं। तो ये है, ये भी एक फिगर है देखो। ये मैं अलग अलग फिगर इसलिए लिया कि आपको वो इमेजिन हो सके और वो हो जाएगा फिर बाद में आपको, इसीलिए ये लिया। अब हम लोग देखेंगे डाई कास्टिंग। अभी क्या है कि ये जो अपने रेगुलर प्रोसेस है ना, ये सैंड कास्टिंग वगैरह, इसमें हम मोल्ड तैयार करते हैं तो वो मोल्ड सैंड मोल्ड वगैरह रहेगा। कंटिन्यूअस कास्टिंग में तो वो एक परमानेंट मोल्ड पर्टिकुलर शेप का है, वो तो हमने देखा। वैसा ही एक परमानेंट मोल्ड इसमें भी रहेगा डाई कास्टिंग में। और उसमें मतलब ये सैंड वाला मोल्ड नहीं रहेगा। ये मोल्ड परमानेंट रहेगा। ये मोल्ड आपको फ्लेक्सिबल होने की जरूरत नहीं। इसमें हम लोग ये मोल्ड 2 पार्ट में होगा। इसमें एक ये देखो ये एक पोर्शन है लेफ्ट साइड का और ये राइट साइड का मोल्ड है, और बीच में जो भी शेप हमको चाहिए उसकी एक कैविटी तैयार की जाएगी। एक्चुअली मशीन पे जब रहता है तो इधर इसमें ये फिक्स प्लेट है और इसको हमने एक पार्ट जोड़ दिया और दूसरा जो पार्ट है वो मूविंग प्लेट को जोड़ दिया। और ये हम लोग ऐसा मूव कैसा करते हैं, तो ये तुम्हारा कॉम्प्रेस्ड एयर यूज करते हैं। न्यूमेटिक या ज्यादा पावरफुल लगेगा तो हाइड्रोलिक अरेंजमेंट भी अवेलेबल है। इस प्लेट को हम लोग आगे पीछे घुमा सकते हैं, क्लोज ला सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। टू द स्टार्ट ऑफ विद टू द स्टार्टिंग ऑफ दिस प्रोसेस व्हाट हैपेंस, ये पहले ऐसा बाहर रहता है। बाहर रहेगा तो बाद में जो मोल्ड वगैरह है उसका पूरा शेप, उसमें पाउडर वगैरह हम लोग डालेंगे। ये पाउडर इसलिए डालेंगे कि जो बाद में मोल्टन मेटल हम लोग डालने वाले हैं वो उसको स्टिक नहीं होना चाहिए। बाद में हम लोग क्या करते हैं, उस मोल्ड को क्लोज यहाँ पे लाएंगे। वो जब क्लोज होगा तो अभी ये कैविटी रहेगी अंदर ना, जो शेप हमको चाहिए वो पहले ही वो डाई बना के उसमें वो बनाई गई है। अभी इसमें से ये जो पोर्शन है ना, यहाँ पे ये पोरिंग करने के लिए तो हम लोग अभी ये जनरली किसके लिए यूज होता है, एल्यूमिनियम, व्हाइट मेटल, जिंक, इसके लिए यूज होता है। इनके मेल्टिंग पॉइंट कम है ना, इसके लिए ये डाई कास्टिंग प्रोसेस ज्यादा पॉपुलर है इसमें। सो व्हाट वी यूज इट, वी टेक फ्रॉम मोल्टन बाथ दैट मोल्टन एल्यूमिनियम or zinc or white metal and we put it into the this one, and then this ram that is or injection, this piston will press this.
तो ये प्रेशर से ये पूरे गैप में चला जाता है। ये प्रेशर देना जरूरी है, क्योंकि एक तो ये ग्रेविटी नहीं है, उसको आपको प्रेशर देने के बाद ही हो जाएगा। और ये ऐसा थिन पोर्शंस रहेंगे अंदर के, उसकी विड्थ ज्यादा रहेगी लेकिन थिकनेस कम रहेगी, तो उसमें वो सब जाना चाहिए। तो ये जो तुम्हारे ऑटोमोबाइल पार्ट्स है ना, so most of the automobile parts, they are made by die casting. Okay, aluminum is extensively used in automobile to reduce the weight. So those and parts sizes are these parts shapes are complicated, and then you can use this die casting process for that. Okay, और ये उसमें pour होने के बाद, ये पूरा हो जाने के बाद, then you remove this plate here. ये रिमूव होने के बाद ये तो आपका जगह पे है, लेकिन ये ओपन हो गया, अभी तुम्हारा कास्टिंग ओपन हो गया। तो कास्टिंग ओपन होने के बाद उसको हम लोग ऐसा एक ये तैयार करेंगे, एक वायर, उससे हम लोग एक स्टिक तैयार करेंगे, उससे हम लोग उसको बाहर निकाल देंगे। तो बाहर निकालने के बाद उसके जो स्टेम बाहर थोड़ा सा ये रहेगा उसका, मतलब थोड़े पोर्शन थोड़ा सा बाहर आया हुआ वगैरह, फ्लैश वगैरह थोड़ा बाहर आता है ना, तो वो फ्लैश निकालने के लिए, फिनिश करने के लिए वो ग्राइंडिंग सेक्शन में जाएगा और आपका पार्ट एकदम मस्त तैयार होगा। और ये रेट ऑफ प्रोडक्शन बहुत अच्छा है इसका, और पार्ट सस्ते भी पड़ते हैं, इसीलिए तो ऑटोमोबाइल की कीमतें फिर भी अपने कंट्रोल में, इतने सब कॉम्प्लिकेटेड पार्ट्स की असेंबली होते हुए भी। So that for die casting, I have given various that material, gravity die casting, high pressure die casting, low pressure. These are various casting processes, and that I have explained here. Okay, horizontal die casting is very famous. ये एक तुम्हारा die casting का ये रहा। इसका भी एक वीडियो था मेरे पास, जस्ट मिनट, उसका एनिमेशन है क्या, जरा मैं एक बार देखते हैं बच्चों इसका die casting का। जस्ट मिनट, गिव मी सम टाइम। ये कहाँ आया, मैं किसी में क्यों आया भाई? दिस इज डिप्लोमा का है, P1। तो die casting, जस्ट मिनट, यहाँ पे तो कुछ दिख नहीं रहा है। नहीं, ये वेल्डिंग का नोट्स बहुत हो गए ना, इसलिए कहीं कहाँ गए वही वो ढूंढना बहुत पड़ रहा है आजकल। ये देखो die casting, हाँ ये देखो, ये die casting का मिल गया। अभी इसमें हम ये तुमको दिखाते हैं die casting एनिमेशन। हाँ देखो die casting, ये देखो, ये वो दो मोल्ड है, तो इधर एक शेप है वो, और उधर उसका रिमेनिंग शेप उसमें, मतलब, और इसका जो प्लेन है ना, ये प्लेन पार्टिंग लाइन है। तो अभी ये दोनों एक दूसरे को ये किया, मतलब जोड़ दिया गया। हाँ, ये अभी ये उसका अंदर का शेप है, हम लोग ऐसा इसमें से भर देंगे और इस रैम से इसको डालेंगे, दोनों साइड में ऐसा आएगा, एक टाइम दो कास्टिंग तैयार होते हैं। देखो, हाँ अभी ये तैयार होने के बाद, वो कूल सफिशिएंटली कूल होने के बाद इसको हम ये लेफ्ट साइड में बाहर निकाल देगा, और वो इजेक्टर पिन उसको ढकेल देगी ऐसा। तो ये आपको मिल गया। अभी ये से यहाँ से काटो, यहाँ से काटो, हाँ दो मिल गए। देखो ये डाई कास्टिंग, ये एनिमेशन इतना अच्छा है कि ये जो कलर है ना, एग्जैक्ट कलर है ये एल्यूमिनियम व्हाइट मेटल का, तो ऐसे डाई कास्टिंग दिखते हैं आपको। सो दिस इज अ वेरी गुड एनिमेशन, आई रियली लाइक्ड इट। ऐसा ही अगर ये यहाँ पे एक है, उसमें भी एक है ना, कोल्ड चेम्बर डाई कास्टिंग और हॉट चेम्बर डाई कास्टिंग है। तो ये कोल्ड चेम्बर है, मतलब ये जो चेम्बर है ना, ये जब कोल्ड कंडीशन में रहता है ना, तो हमारा इसको कहेंगे कोल्ड चेम्बर डाई कास्टिंग। और वही चेम्बर जब हॉट रहेगा, मतलब बाहर से ऐसा हीटर उसको लगेगा, तो उसको कहेंगे हॉट चेम्बर डाई कास्टिंग, बराबर। और और एक ये है तुम्हारा हॉट चेम्बर डाई कास्टिंग है। देखो ये तुम्हारा चेम्बर है ना, पूरा हॉट है, और वो मतलब तुम्हारा मोल्टन मेटल ये हमेशा हॉट कंडीशन में रखता है। और वो बाकी पोर्शन फिर सेम है, वो प्लंजर ने ऐसा पुश किया तो ये ऐसा यहाँ से चला गया है। देखो ये प्लंजर ने ऐसा
पुश किया तो ये मोल्टन मेटल यहाँ से नोजल इफेक्ट से तेजी से अंदर गया, स्पीडी से पूरा एंड तक जाता है। सो यू कैन सी दिस एनिमेशन, वेरी नाइस। पहले थोड़ा स्प्रे किया पाउडर वगैरह, बाद में जोड़ दिया, अभी इसको प्रेशर से ये नीचे ये किया तो वो उसमें चला गया, ये प्रोसेस पूरा हो गया। इन शॉर्ट मतलब ये प्रेशर दिया जाएगा तुम्हारा, और हॉट चेंबर में, चेंबर इज हॉट एंड कोल्ड चेंबर में हीटिंग अरेंजमेंट नहीं रहेगा। तो ये रहा तुम्हारा पूरा ये व्हाट वी कॉल इट डाई कास्टिंग का एक पोर्शन। और एक हम लोग ले लेंगे, एक शेल मोल्डिंग नाम का और एक है, वो भी आप हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे शेल मोल्डिंग क्या है। शेल मोल्डिंग हम देख लेंगे। तो जस्ट मिनट। हाँ, ये देखो शेल मोल्डिंग। तो शेल मोल्डिंग ऐसा है कि मतलब तुमको एक ये टाइप का शेप तैयार करना है। हाँ, एक शेल ये टाइप का एक शेप तैयार करना है। तो तुम क्या करेंगे, एक शेल तैयार करेंगे, और वो शेल तैयार करके उस शेल में हम लोग मोल्टन मेटल बाद में भरेंगे। तो ये शेल कैसा तैयार करने का, तो देखो ये कास्टिंग प्रोसेस है ना, इन विच द मोल्ड इज अ थिन शेल ऑफ सैंड हेल्ड टुगेदर बाय रेजिन बाइंडर। तो ये अंदर का ऐसा शेप हमने ये तैयार किया, और बाद में ये जो है ना सैंड विथ रेजिन बाइंडर, ये ऐसा एक बॉक्स रहेगा ऐसा। ये बॉक्स रहेगा, तो ये बॉक्स उल्टा करेंगे। ये बॉक्स उल्टा करने के बाद क्या होगा कि ये पूरा जो है ना, या अंदर का ये जो पोर्शन है तुम्हारे पैटर्न का, ये वैकेंट रहेगा, और ये सैंड जो है ना ये बाहर की तरफ जाएगा। अभी हम क्या करेंगे, इसको फिर उल्टा करेंगे। उल्टा करने के बाद क्या है कि ऐसा एक शेल हमारा ऐसा तैयार होगा, ऐसे एक शेल तैयार होगा, और जो बाकी ऊपर का जो ये जो गरम किया हुआ जो पोर्शन था ना, हीटेड पैटर्न, तो उसको एक पर्टिकुलर थिकनेस तक ऐसा शेल तैयार रहेगा, और बाकी का सैंड है ना वो शेल इसमें गिर जाएगा। ये कांच का रहता है, ये आपको देखने को भी मिलेगा, मतलब अंदर क्या है बना है कैसा, वो देखने को मिलेगा। तो ऐसा ये एक हाफ ऐसा बना दिया। वैसा ये दूसरा एक हाफ बनाते हैं हम लोग पैरेलली, और ये दोनों हाफ है ना बाद में ऐसा जोड़ देते हैं। ये दोनों दोनों पार्ट हम लोग है ना ऐसा जोड़ देते हैं। ये जोड़ने के बाद ये जो शेल तैयार हुआ, ये पूरा ये शेल मोल्टन मेटल से हम लोग भर देते हैं। जैसे अभी समझो कोई जार वगैरह बनाना है, कॉम्प्लिकेटेड शेप का वगैरह वो आता है ना, फ्लावर पॉट पर्टिकुलर शेप का वगैरह, उसके लिए ये शेल मोल्डिंग बहुत यूज होता है। तो इसका भी एक वीडियो था मेरे पास, अगर मुझे जल्दी मिलता है तो मैं दिखाता हूँ। इफ इट इज टेकिंग टाइम देन रहने दो, लेकिन ये है मेरे ख्याल से। एक जस्ट अ मिनट। शेल मोल्डिंग यहाँ पे कहीं दिखता है कि जरा देखो बच्चों, यहाँ पे तो नहीं है। जस्ट अ मिनट। तीसरे में देखते हैं शेल मोल्डिंग। ये यहाँ पे दिखा है देखो शेल मोल्डिंग। तो शेल मोल्डिंग की थोड़ी सा हम लोग वीडियो देखेंगे। ये कॉम्प्लिकेटेड शेप है, देखो ये एक पोर्शन है ना, ये तुमने ये इस पे सैंड ऊपर डाल दिया, उल्टा उल्टा किया ना सैंड बॉक्स, तो वो सैंड उस पे आ जाएगी, वो पर्टिकुलर पे देखो ये सैंड का पोर्शन तैयार हुआ पूरा, और बाद में वो पैटर्न निकल देंगे हम लोग, और उसका दूसरा भी एक पोर्शन बनाएंगे, और वो बाद में, हाँ वो पोर्शन होने के बाद साइड में सैंड भर देंगे, लेकिन वो बीच का पोर्शन है ना उतना अपना वेकेंट रहेगा, उसमें मोल्टन मेटल डालेंगे। सो यू गेट दिस पर्टिकुलर शेल। ओके, तो ये तुम्हारा अच्छा है। हाँ, ये देखेंगे कौन सा है। हाँ, ये भी एक बढ़िया है। ये देखो ये एक शेल तैयार किया, ये एक शेल तैयार किया, देखो ये एक शेल तैयार किया उन्होंने, और दूसरा हाफ है वो एक शेल किया। अभी ये दोनों पोर्शन है ना,
और इसमें तो कोर भी है, देखो बच्चों, कोर। हाँ, ये पर्टिकुलर शेप का कोर भी अवेलेबल है। देखो अभी उसने ये जार तैयार किया, मतलब वो कोर, इसका जो अंदर का जो साइज था ना वैसा था, और बाहर के जो पोर्शन है ना वो दो हाफ में उन्होंने शेल मोल्डिंग से क्रिएट किए थे। देखो ये जो बनता है ना ब्रॉन्ज का वगैरह, ये जो पर्टिकुलर शेप बनता है ना, ये बनाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। देखो वो बना रहे हैं, देखो भाई, शेल मोल्डिंग। अरे दुनिया में क्या क्या है, हम लोगों को मालूम नहीं रहता। अभी ये सिलेबस की वजह से हम लोग उसमें चले गए। इजेक्टर पिन्स वी कॉल दिस, इजेक्टर पिन। मोल्डिंग सैंड, आजकल वो सीमेंट भरने का रहता है ना ऑटोमेटिक, वैसा वो सैंड भी पूरा भर दिया है। हीटेड, जो बेकिंग रहती है ना, बेकिंग, वो गैस बर्नर्स वगैरह है। देखो कितना अच्छा अरेंजमेंट है, दिस ऑल ऑटोमेशन। ये पर्टिकुलर जो वीडियो है ना, ये शेल मोल्डिंग विथ, बाद में बीच में एक कोर रहता है, वो कोर डालने के बाद वो सिर्फ एक थिन स्ट्रक्चर उतना ही रहता है जो तुम्हारा वो जार बनाता है उसका। ये देखो उन्होंने ये भी बना दिया अभी। हाँ, ये बना के तैयार हुआ, यानी वो जो सैंड थी ना उससे ये बन गया, बाइंडर वगैरह डाल के। वो जो अभी जो सैंड डाली थी ना, बन गया। हाँ, ये तो बाहर का शेप डिसाइड करेगा जार का। अभी वो शेप डाल के अगर डायरेक्ट और किया तो वो सॉलिड बन जाएगा। हमको क्या चाहिए, वो हॉलो भी चाहिए एक पर्टिकुलर थिकनेस का। तो वही वैसे ही शेप का कम थिकनेस वाला एक इसमें कोर लाके उसमें रख देंगे। ये देखो ये, हाँ, ये कोर डाल दिया देखो उन्होंने बीच में। ये देखो वो पैटर्न्स में कोर डाल दिया। अभी ये अंदर जाने नहीं देगा, वो बीच का जो गैप है ना सरकमफरेंशियल, उतना ही भरेगा और आपका जार तैयार होगा। बच्चों समझ गया? हेलो, Yes, sir. Yes, हाँ sir. समझ, हाँ वास्तव तुमको समझा तो हमको समाधान है, इसलिए मैं दिखा रहा हूँ कि ये मतलब विथ कोर वाला ये उन्होंने दिखाया। मस्त है एकदम वीडियो। सो दिस इज अबाउट दैट वन, आवर शेल मोल्डिंग। तो उसके पहले हमने शेल मोल्डिंग के पहले एक CO2 मोल्डिंग वो कल ही देखा था हमने। मतलब ग्रीन सैंड मोल्ड, ड्राई CO2 मोल्डिंग, शेल मोल्डिंग। आज हमने स्टडी किया इन्वेस्टमेंट कास्टिंग, और तो और हम किया तुम्हारा क्या कौन सा, सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग, कंटिन्यूअस कास्टिंग एंड डाई कास्टिंग। तो आज हमने सब देखे all various types of casting processes that we have studied today. So आगे का हमारा पोर्शन जो है अगले लेक्चर में, यानी कल हम देखने वाले हैं कि हमारा मतलब वेरियस टाइप्स ऑफ कास्टिंग डिफेक्ट्स हम कल देखने वाले हैं। और अगर कास्टिंग डिफेक्ट्स हो मिला हमको तो वेरियस destructive testing methods to check that casting defect that we are going to see in the tomorrow's lecture. तो बच्चों ये सब वो डिफेक्ट्स हम लोग कल देखेंगे। और वो डिफेक्ट्स देखने के लिए कौन से यूज होते हैं नॉन ट्रेडिशनल मेथड, जैसे विजुअल इंस्पेक्शन, डीपी टेस्ट, टाइप पेनिट्रेशन टेस्ट, मैग्नेटिक पार्टिकल इंस्पेक्शन, रेडियोग्राफी टेस्टिंग,
अल्ट्रासोनिक। तो ये हम लोग कल देखने वाले हैं। तो अभी रिकॉर्ड बंद करते हैं।